Hello everyone, and in today's video we will be covering chapter 4 International Organizations of your class 12 political science in one shot. This is the United Nations logo, and this emblem has a world map and olive branches around it signifying world peace. The very first topic is why international organizations. So here the important quote by Dag Hammarskjöld, who was the UN's second Secretary General, that the United Nations was not created to take humanity to heaven but to save it from hell. Another important quote is War is better than war, which was given by Winston Churchill and it was used by Shashi Tharoor in his speech. Along with this, we need to know that international organizations help with the matter of war and peace, and they also help the countries cooperate to make better living conditions for us all. Countries definitely they have conflicts, they have differences with each other, but that does not mean that they must go to war to deal with their differences, right? Instead, they can discuss the issues, they can find peaceful solutions. And here also you need to know that the role of international organization comes important in this context. An international organization is not a super state with authority over its members. It is created by and it responds to the states. It comes into being when states agree to its creation, and once it is created, it can help member states resolve their problems peacefully. सो दिस पार्ट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, जहाँ पर ये बताया जा रहा है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस कोई एक सुपर स्टेट नहीं है जो अपने मेंबर्स के ऊपर जो है अथॉरिटी दिखा रहा हो, रैदर इट इज़ क्रिएटेड बाय एंड इट इज़ रिस्पॉन्स टू द स्टेट्स. ठीक है, ये बनता ही तब है व्हेन स्टेट्स अग्री टू इट्स क्रिएशंस एंड इट कैन हेल्प द मेंबर स्टेट्स टू रिजॉल्व देयर प्रॉब्लम्स पीसफुली. जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, इसकी हेल्प से नेशंस कैन डू थिंग्स टुगेदर, the issues which are challenging and which can only be dealt when everyone is there. For example, disease can be eradicated जब हर member will in the world will cooperate, yes, that they will be vaccinating their pollutions. Second example, global warming और उसके effects. तो जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है और जिसकी वजह से जो ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ रही है एटमॉस्फेयर में, ये भी एक डेंजर है. सी लेवल्स राइज कर रहे हैं और जिसकी वजह से जो कोस्टल एरियाज़ हैं वर्ल्ड के वो सबमर्ज कर रहे हैं. सो ऑफ कोर्स हर एक कंट्री का खुद का सल्यूशन होता है, बट इन दी एंड everyone has to stop. Then unfortunately recognizing the need for cooperation and actually cooperating, things are two different things. एक तो आप समझ रहे हो कि हाँ हमें कॉपरेट करना चाहिए बिकॉज ऑफ द दीज ऑल द प्रॉब्लम्स, और एक दूसरी चीज़ होती है एक्चुअल में इम्प्लीमेंट करना, एक्चुअल में कोऑपरेट करना. तो ये दोनों बहुत डिफरेंट थिंग्स हैं. नेशंस रिकोगनाइज तो कर रहे हैं दैट येस वी नीड टू कोऑपरेट, बट दे आर नॉट एबल टू डिसाइड ऑन कि कैसे करें. ठीक है, हाउ डू वी शेयर द costs of cooperating, how to make sure that the benefits of cooperating are justly divided, and how to ensure that others do not break their end of the bargain and cheat on the agreement. तो जो एक international organization होता है, it can help produce information and the ideas about how to cooperate. It can provide mechanisms, rules and a bureaucracy to help members have more confidence that costs will be shared properly, that the benefits will be fairly divided, and that once a members join an agreement it will honor the terms and conditions of the agreement. तो ये सारी चीज़ें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन मेक श्योर करती है. और जैसे ही कोल्ड वार ख़त्म होता है तो हम ये भी देखते हैं कि यूएन का जो रोल है वो स्लाइटली डिफरेंट हो जाता है, बिकॉज यूएस जो है वो जीत जाता है, उसके अलाइज जीत जाते हैं. तो कंसर्न्स थे काफ़ी गवर्नमेंट्स और पीपल्स के कि क्या ये जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है और जो यूएस है वो इतनी पावरफुल होगी कि कोई भी उनके अगेंस्ट उनके विशेस और डिज़ायर्स को चेक कर पाए. तो क्या यूएन एक ऐसा मैकेनिज्म हो सकता है जो प्रमोट करे डायलॉग एंड डिस्कशंस विद द यूएस. नाउ द सेकंड टॉपिक इज़ एवोल्यूशन ऑफ द यूएन. तो दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, फाउंडिंग ऑफ द यूनाइटेड नेशंस. पहले तो आपका अटलांटिक चार्टर साइन होता है बाय यूएस प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, ब्रिटिश पीएम विंस्टन चर्चिल. उसके बाद 26 अलाइड नेशंस जो है ये भी साइन करते हैं टू सपोर्ट द अटलांटिक चार्टर और साइन द डिक्लेरेशन बाय द यूनाइटेड नेशंस. उसके बाद 1943 में तेहरान कॉन्फ्रेंस होती है ऑफ द थ्री पावर्स यूएस, ब्रिटेन एंड सोवियत यूनियन. फिर 1945 में याल्टा कॉन्फ्रेंस होती है ऑफ द बिग थ्री, एंड दे डिसाइड्स कि वी नीड टू द कॉन्फ्रेंस ऑन द प्रपोज वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन. फिर 1945 में अप्रैल में 2 महीने लंबी एक कॉन्फ्रेंस चलती है एट सैन फ्रांसिस्को. और फिर 1945 जून 26 ये लोग साइन कर देते हैं. सो यूएन हैज़ 51 ओरिजिनल फाउंडिंग मेंबर्स. 24 अक्टूबर को हम यूएन डे सेलिब्रेट करते हैं बिकॉज इट वाज फाउंडेड, और 1945 अक्टूबर 30 को इंडिया ज्वाइन करता है. तो जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था उसी से शुरुआत हो गई थी दैट वी नीड टू इन्वेस्ट इन एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन विच विल हेल्प अस टू डील विद कन्फ्लिक्ट. काफ़ी लोगों को लगता भी था कि
if we have such organizations too, it will help the world to avoid war. तो इस वजह से लीग ऑफ नेशंस बॉर्न, बट उसका इनिशियल सक्सेस तो देखा, बट इट कुड नॉट प्रिवेंट द सेकेंड वर्ल्ड वॉर फ्रॉम 1939 to 45. काफ़ी लोग मर जाते हैं एंड दे वर वाउंडेड इन दिस वॉर. सो UN was found as a successor to the League of Nations and it was established in 1945 immediately after the Second World War. तो जो ऑर्गेनाइजेशन होता है इट वॉज सेटअप थ्रू साइनिंग ऑफ द यूनाइटेड नेशंस चार्टर बाय 51 स्टेट्स. जैसे ही 51 स्टेट्स जो उसको साइन करते हैं तो इट वॉज सेटअप एंड इट ट्राई टू अचीव वॉट द लीग कुड नॉट बिटवीन द टू वर्ल्ड वॉर्स. तो जो UN का ऑब्जेक्टिव था इट वॉज टू प्रिवेंट इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट एंड फैसिलिटेट कोऑपरेशन अमंग द स्टेट्स. इसको बनाया गया था इस होप से कि इट वुड एक्ट टू स्टॉप द कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन स्टेट्स एस्केलेटिंग इनटू वॉर. तो अगर कोई दो स्टेट्स के बीच में इश्यूज़ चल रहे हैं और इतना ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गया कि वो इवन वो वॉर तक लीड कर सकता है, तो उस चीज़ को स्टॉप करना. और इन केस अगर वॉर हो भी जाती है सो जो भी एट्रॉसिटीज़ और हॉस्टिलिटीज़ हो रही है उसको लिमिट करना. फर्दरमोर कॉन्फ्लिक्ट्स क्यों अराइज करती है? बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट. तो UN वॉज इंटेंटेड टू ब्रिंग कंट्रीज टुगेदर टू इम्प्रूव द प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड. 2011 तक UN के 193 मेंबर स्टेट्स हो जाते हैं विच इंक्लूडेड ऑलमोस्ट ऑल इंडिपेंडेंट स्टेट्स. UN जनरल असेंबली में मेंबर्स हैव 1 वोट ईच. हर एक सदस्य के पास 1 वोट होता है. और UN सिक्योरिटी काउंसिल में देर आर 5 परमानेंट मेंबर्स: यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, रशिया, फ्रांस एंड चाइना. ये स्टेट्स को परमानेंटली क्यों सिलेक्ट किया? बिकॉज दे वर द मोस्ट पावरफुल इमीडिएटली आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड बिकॉज दे कॉन्स्टिट्यूटेड द विक्टर्स इन द वॉर. वॉर में ये लोग जीत गए थे और वॉर ख़त्म होते ये लोग बहुत पावरफुल थे. जो UN का मोस्ट विजिबल पब्लिक फिगर होता है और जो रिप्रेजेंटेटिव होता है वो होता है सेक्रेटरी जनरल. जो प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल है वो है एंटोनियो गुटेरेस. ये 9th सेक्रेटरी जनरल है एंड ही टुक ओवर द सेक्रेटरी जनरल ऑन 1 जनवरी 2017. ये प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं पोर्चुगल के एंड ही वॉज ऑल्सो द UN हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज़ इन 2005 to 15. UN और भी डिफरेंट स्ट्रक्चर्स और एजेंसीज़ को कंसिस्ट करता है. तो जो भी वॉर और पीस के मैटर्स हो गए, फिर अगर कोई डिफरेंसेस होते हैं बिटवीन मेंबर स्टेट्स, ये सारी चीज़ें डिस्कस की जाती है जनरल असेंबली में और सिक्योरिटी काउंसिल में भी. जो भी सोशल और इकोनॉमिक इश्यूज़ होते हैं वो काफ़ी एजेंसीज़ डील करती है, जैसे कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमीशन, द यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन फॉर रेफ्यूजीज़, द यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड्स, द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन अमंग अदर्स. फिर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ रिफॉर्म ऑफ द UN आफ्टर द कोल्ड वॉर. तो जैसे ही कोल्ड वॉर ख़त्म होता है उसके बाद UN में इम्प्रूवमेंट लाने की बात की जाती है, बिकॉज इम्प्रूवमेंट हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए नेसेसरी है टू सर्व द नीड्स ऑफ द चेंजिंग एनवायरनमेंट. और इसी वजह से रिसेंट ईयर्स में हम देखते हैं कि डिमांड उठ रही है फॉर रिफॉर्म ऑफ द वर्ल्ड बॉडी. लेकिन इस चीज़ पे लिटिल क्लैरिटी और कंसेंसस है कि क्या रिफॉर्म होना चाहिए. तो 2 बेसिक काइंड्स ऑफ रिफॉर्म है फेस द UN. रिफॉर्म ऑफ द स्ट्रक्चर, रिफॉर्म ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड प्रोसेसेस, और दूसरा है अ रिव्यू ऑफ द इशूज़ दैट फॉल विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. तो सब ने ही जो है इन बोथ जो भी 2 एक्सपेक्ट्स है उसमें एग्री करा है, पर क्या चीज़ जिस पे वो एग्री नहीं कर पा रहे हैं इज़ व्हाट इज़ टू बी डन, हाउ इट इज़ टू बी डन एंड व्हेन इट इज़ टू बी डन. तो अगर हम बात करते हैं रिफॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड प्रोसेसेस की, जो बिगेस्ट डिस्कशन है दैट इज़ बीन ऑन द फंक्शनिंग ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल की UN की फंक्शनिंग पे बहुत डिस्कशन हुई है. इसी के रिलेटेड जो है डिमांड उठी है कि इस UN के जो परमानेंट और नॉन परमानेंट मेंबरशिप है उसको इंक्रीज़ करी जाए सो दैट रियलिटीज़ ऑफ कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स आर बेटर रिफ्लेक्टेड इन द स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. In particular, there are proposals to increase membership from Asia, Africa and South America. इसके अलावा जो US और बाकी की वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उनको UN के बजटरी प्रोसीजर्स और एडमिनिस्ट्रेशन में इम्प्रूवमेंट्स चाहिए. ऑन द इशूज़ टू बी गिवन ग्रेटर प्रायोरिटी विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ द UN, वहाँ पे कंट्रीज़ और एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन को और ज़्यादा अच्छा रोल प्ले करना चाहिए इन पीस एंड सिक्योरिटी मिशंस. वेयर एज जो बाकी लोग हैं वो कह रहे हैं कि जो UN का रोल है इट शुड बी कन्फाइंड टू द डेवलपमेंट एंड ह्यूमैनिटेरियन वर्क, जैसे कि हेल्थ, एजुकेशन, एनवायरनमेंट, पॉपुलेशन कंट्रोल, ह्यूमन राइट्स, जेंडर एंड सोशल जस्टिस. सो अब हम इन दोनों ही एस्पेक्ट्स को और थोड़ा डिटेल में समझेंगे. UN जो है इमीडिएटली आपको पता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इस्टेब्लिश हो गया. द वे इट वॉज ऑर्गेनाइज एंड द वे इट फंक्शन रिफ्लेक्टेड द रियलिटीज़ ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. तो जब कोल्ड वॉर ख़त्म हो जाती है वो रियलिटीज़ डिफरेंट थी. क्या क्या चीज़ें थी? सोवियत यूनियन USSR कोलैप्स हो गया था. US सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पावर था. जो रिलेशनशिप रहा है बिटवीन रशिया जो कि सक्सेसर था सोवियत यूनियन का और US, वो काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेटिव हो गया था. चाइना जो है वो फास्ट इमर्ज करा था एज अ ग्रेट पावर और इंडिया भी
रैपिडली ग्रो कर रहा है. इकोनॉमीज ऑफ एशिया जो है दे आर ग्रोइंग एट एन अनप्रेसिडेंटेड रेट. मैनी न्यू कंट्रीज हैव जॉइन द UN एज दे बिकेम इंडिपेंडेंट फ्रॉम द सोवियत यूनियन और फॉर्मर कम्युनिस्ट स्टेट्स इन द ईस्टर्न यूरोप. और एक बहुत ही नए चैलेंजेस, सेट ऑफ चैलेंजेस हम वर्ल्ड देखते हैं, जैसे कि जीनोसाइड, सिविल वॉर, एथनिक कन्फ्लिक्ट, टेररिज्म, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन, क्लाइमेट चेंज, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन और एपिडेमिक्स. इस सिचुएशन में जैसे कि 1989 में जब कोल्ड वॉर खत्म हो रहा था, तो जो क्वेश्चन वर्ल्ड फेस कर रहा था, इज UN डूइंग इनफ? Is it equipped to do what is required? What should it be doing and how? What reforms are necessary to make it work better? For the past decade and a half, member states have been trying to find satisfactory and practical answers to these questions. So हम डिटेल में बात करेंगे about reforms of structures and processes. तो यहाँ पे we need to understand the agreement on what to do is difficult. जब 1992 में UNG ने अडॉप्ट किया था एक रेजोल्यूशन, तो उसमें बताया गया था 3 कंप्लेंट्स कि सबसे पहले तो जो सिक्योरिटी काउंसिल है वो अभी की कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल रियलिटीज़ को रिप्रेजेंट नहीं कर रही है, वो इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन को लैक करती है, और जो भी इसके डिसीजंस होते हैं वो वेस्टर्न वैल्यूज़ और इंटरेस्ट को रिफ्लेक्ट करते हैं, एंड इट इज़ डोमिनेटेड बाय अ फ्यू पावर्स. इसके हिसाब से ये जो ग्रोइंग डिमांड थी रीस्ट्रक्चरिंग की, 1 जनवरी 1997 को UN सेक्रेटरी जनरल कोफी अन्नान एक इंक्वायरी इनिशिएट करते हैं कि UN को रिफॉर्म तो करना है, बट कैसे करना है. लाइक आप बोल रहे हो कि आपको सिक्योरिटी काउंसिल में और मेंबर्स इंक्रीज़ करने हैं, तो आप किस हिसाब से मेंबर्स को इंक्रीज़ करोगे. तो ये कुछ सजेशंस थे जो दिए गए थे. सबसे पहले जो भी कंट्री होगी इट शुड बी अ मेजर इकोनॉमिक पावर, अ मेजर मिलिट्री पावर, a substantial contributor to the UN budget, a big nation in terms of its population, a nation that respects democracy and human rights, a country that would make the council more representative of the world's diversity in terms of geography, economic systems and culture. However, each of these criteria has some validity. Governments saw advantages in some criteria and disadvantages in other, depending on their interests and aspirations. So, if they had no desire to be members themselves, countries see that these criteria have some problem. आपने बोले इकोनॉमिक और मिलिट्री पावर होनी चाहिए, बट कितना लेवल होना चाहिए. अगर आप बोले बजट कंट्रीब्यूट करना चाहिए, तो what amount, what level of budget contribution it should play. So ये सारी problems was confronted. अब in the Security Council there are 5 permanent and 10 non-permanent members. जो चार्टर है वो परमानेंट मेंबर्स को एक प्रिविलेज पोजीशन देता है, सो दैट दे वुड हेल्प टू ब्रिंग अबाउट स्टेबिलिटी इन द वर्ल्ड आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. जो मेन प्रिविलेजेस है वो है परमानेंसी एंड वीटो पावर. जो नॉन परमानेंट मेंबर्स है दे सर्व ओनली फॉर 2 years एट अ टाइम एंड गिव वे आफ्टर दैट पीरियड टू न्यूली इलेक्टेड मेंबर्स. और एक कंट्री वापस से री इलेक्ट नहीं हो सकती इमीडिएटली आफ्टर कंप्लीटिंग अ टर्म ऑफ 2 years. जो नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं दे आर इलेक्टेड इन सच अ मैनर दैट दे रिप्रेजेंट ऑल द कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड. तो ये नॉन परमानेंट मेंबर्स है कि जस्ट 2 years के लिए, उसके बाद न्यूली इलेक्टेड मेंबर्स आते हैं, दे कैन नॉट बी री इलेक्टेड, और वो इस तरीके से इलेक्ट होते हैं कि वो हर एक कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करे. वैराज जो परमानेंट मेंबर्स हो गए उनके जो प्रिविलेजेस है वो है परमानेंसी एंड वीटो पावर. अभी वीटो पावर क्या है कि कोई भी डिसीजन लेने में सिक्योरिटी काउंसिल प्रोसीड्स बाय वोटिंग, जहाँ पे हर एक मेंबर के पास एक वोट है. लेकिन जो परमानेंट मेंबर है दे कैन वोट इन अ नेगेटिव मैनर, सो दैट इफ ऑल अदर परमानेंट एंड नॉन परमानेंट मेंबर्स वोट फॉर अ पर्टिकुलर डिसीजन, एनी परमानेंट मेंबर्स नेगेटिव वोट कैन स्टॉल द डिसीजन, और इसी नेगेटिव वोट को वीटो बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल 15 मेंबर्स होते हैं UNSC में, अगर 14 ने भी एक पर्टिकुलर एजेंडा के लिए येस कर दिया और एक परमानेंट मेंबर ने वीटो पावर यूज़ करा और मना कर दिया, तो वो मना ही हो जाएगा. बट येस देयर हैज़ बीन डेफिनेटली अ मूव टू अबॉलिश एंड मॉडिफाई द वीटो सिस्टम. बट एक ये भी रियलाइजेशन हुई है कि इट इज़ अनलाइकली, क्योंकि वर्ल्ड इतने रेडिकल स्टेप के लिए रेडी नहीं है. 1945 में जैसे डेंजर था कि जिसकी वजह से तो ग्रेट पावर्स जो है वो अपना इंटरेस्ट ही लूज़ कर देगी वर्ल्ड बॉडी में, ठीक है, और फिर जो उनका सपोर्ट है और इन्वॉल्वमेंट है उसके हिसाब से ये बॉडी इनफेक्टिव हो जाएगी. फिर है जुरिस्डिक्शन ऑफ द UN. तो जैसे ही UN ने 60 years कंप्लीट करे उसके एग्जिस्टेंस के, तो जो हेड्स थे ऑफ ऑल द मेंबर स्टेट्स दे मेट इन September 2005 टू सेलिब्रेट द एनिवर्सरी एंड रिव्यू द सिचुएशन. क्रिएशन ऑफ अ पीस बिल्डिंग कमीशन, acceptance of the responsibility of the international community in case of failures of national government to protect their own citizens from atrocities, establishment of a human rights council, agreement to achieve the millennial development goals, condemnation of terrorism in all its forms and manifestations, creation of a democracy fund, and agreement to wind up trusteeship council. It is hard to see that these are equally contentious issues for the US. So similarly, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंटरनेशनल कम्युनिटी की इन डीलिंग विद atrocities? What are human rights and how should they determine the level of human rights violation and the course of action what they have to be taking in case they are violated?
अब नेक्स्ट टॉपिक है इंडिया एंड द यूएन रिफॉर्म्स। तो इंडिया ने सपोर्ट तो किया है कि डेफिनेटली द यूएन शुड बी रीस्ट्रक्चर्ड ऑन सेवरल ग्राउंड्स एंड इट बिलीव्स कि स्ट्रेंथन और रिवाइटलाइज्ड यूएन इज डिजायरेबल इन अ चेंजिंग वर्ल्ड। इंडिया सपोर्ट करता है इन्हांस्ड रोल फॉर यूएन इन प्रमोटिंग डेवलपमेंट एंड कोऑपरेशन अमंग स्टेट्स, और इंडिया बिलीव करते हैं कि डेवलपमेंट इज सेंट्रल in the UN's agenda as it is a vital precondition for the maintenance of international peace and security. जो मेजर कंसर्न है इंडिया का इज़ बीन इन द कंपोजिशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल, कि ये बहुत स्टैटिक रही है, जबकि आप देखते हो कि जो UNGA है वो भी कंसिडरेबली एक्सपैंड की है बट ऐसी नहीं है। तो इंडिया जो है कंसिडर करता है कि इससे जो है इट हैज़ हार्म द रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल, और ये ऑल्सो आर्ग्यू करता है कि जो काउंसिल है जितना ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन होगा उतना ज़्यादा सपोर्ट SC को मिलेगा फ्रॉम द वर्ल्ड कम्युनिटी। वी शुड कीप इन माइंड दैट ये जो मेंबरशिप है ऑफ UN सिक्योरिटी काउंसिल वॉज एक्सपैंडेड फ्रॉम 11 to 15 1965 में, बट कोई चेंज नहीं था इन द नंबर ऑफ परमानेंट मेंबर्स। सिंस देन जो साइज़ है काउंसिल का वो स्टेशनरी है, मतलब कुछ भी इसमें बदला नहीं हुआ है, और ये जो फैक्ट है that it remains the overwhelming majority of the UN General Assembly members now are developing countries. Therefore, India argue करता है कि they should also have a role in shaping decisions in the Security Council which affect them, क्योंकि UN General Assembly में काफ़ी ज़्यादा developing countries है, तो Security Council में भी developing countries को चांस दी जानी चाहिए। और इंडिया सपोर्ट्स द इंक्रीज़ इन द नंबर बोथ परमानेंट और नॉन परमानेंट मेंबर्स का। इससे क्या होगा कि जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन्होंने ये भी आर्ग्यू किया कि जो एक्टिविटीज़ हैं सिक्योरिटी काउंसिल की वो भी एक्सपैंड हो जाएगी। जो सक्सेस है सिक्योरिटी काउंसिल एक्शंस का अपॉन द पॉलिटिकल सपोर्ट ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी, any plan for restructuring of the Security Council should therefore be broad based. For example, जो Security Council है it should have more developing countries in it. India itself also wishes to be a part of the SC as a permanent member in the restructured UN, और क्योंकि आप देखते हो कि इंडिया बहुत ज़्यादा पॉपुलस कंट्री है, उसके अलावा इट कंप्राइज इज़ द 1/5 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। इंडिया जो है वो एक वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी भी है, हर एक इनिशिएटिव्स का पार्ट भी है, और इसका जो रोल है UN में UN पीस कीपिंग एफर्ट्स में दैट इज़ लॉन्ग एंड सब्सटैंशियल वन। कंट्री का इकोनॉमिक इमर्जेंस वर्ल्ड स्टेज पे एक अदर फैक्टर है वो जस्टिफाई करता है इंडिया के क्लेम में। इंडिया हैज़ ऑल्सो बीन अ रेगुलर फाइनेंशियल कंट्रीब्यूटर, अगर ज़्यादा नहीं बट रेगुलर, इट इज़ नेवर मिस्ड ऑन इट्स पेमेंट्स। इंडिया जो है अवेयर है कि परमानेंट मेंबरशिप जो है सिक्योरिटी काउंसिल की उसका सिम्बॉलिक इम्पोर्टेंस क्या है। इट सिग्निफाइज द कंट्रीज ग्रोइंग इंपॉर्टेंस इन वर्ल्ड अफेयर्स, और ये जो है एक ग्रेटेस्ट स्टेटस दे देता है विच इज़ एन एडवांटेज टू अ कंट्री इन द कंडक्ट ऑफ इट्स फॉरेन पॉलिसी। इसके अलावा इंडिया ऑल्सो विशेज टू बी अ परमानेंट वीटो विल्डिंग मेंबर ऑफ द UN, लेकिन ऑल्सो सम कंट्रीज़ जो है इसके इंक्लूजन पे बात भी करती है, जैसे कि नेबरिंग कंट्री जो गई पाकिस्तान, क्योंकि उसका इंडिया के साथ ख़राब रिलेशंस है तो डेफिनेटली डज नॉट वांट इंडिया टू बिकम अ परमानेंट वीटो मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। और जो बाकी कंट्रीज़ हो गई वो उनका जो कंसर्न है इज़ रिगार्डिंग इंडियाज़ न्यूक्लियर वेपन कैपेबिलिटीज़। बाकी लोग सोचते हैं कि जो उसकी डिफ़िकल्टीज़ हैं विद पाकिस्तान विल मेक इंडिया इनइफेक्टिव एज अ परमानेंट मेंबर। काफ़ी लोग ये भी मानते हैं कि अगर इंडिया इंक्लूड होती है UNSC में तो जो बाकी के इमर्जिंग पावर्स हैं दे विल हैव टू बी अकोमोडेटेड, जैसे कि ब्राज़ील, जर्मनी, जापान, साउथ अफ्रीका, जिसको वो अपोज करते हैं। ऑल्सो यहाँ पे वो लोग भी हैं जो फील करते हैं कि अफ्रीका और साउथ अमेरिका मस्ट बी रिप्रेजेंटेड इन एनी एक्सपेंशन ऑफ द परमानेंट मेंबरशिप, बिकॉज ये वो कॉन्टिनेंट्स हैं जिनको कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं मिली अभी प्रेजेंट स्ट्रक्चर में। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ द UN इन अ यूनिपोलर वर्ल्ड। तो जो भी हमने कंसर्न्स देखे अबाउट रिफॉर्म एंड रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द UN, there has been in the hope of some countries that changes could help UN cope better with the unipolar world in which the US was most powerful country without any serious rivalries. सबसे पहले US को इजीली चेक नहीं किया जाता, उसका जो डिसअपेरेंस रहा है सोवियत यूनियन का उसकी वजह से जो US है वो एक सुपर पावर की तरह स्टैंड करता है, उसके मिलिट्री इकोनॉमिक पावर को कोई भी इग्नोर नहीं कर सकता। सेकेंडली जो UN है उसका US है उसका UN पे काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, बिकॉज वो एक सिंगल लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है UN का। UN के पास फाइनेंशियल पावर कोई इसकी मैच नहीं कर सकता। UN जो यहाँ पे फिजिकली लोकेटेड है US टेरिटरी के विद इन, वो भी उसको एक एडिशनल सोर्स ऑफ इन्फ्लुएंस दे देता है। UN की काफ़ी नेशनल UN ब्यूरोक्रेसी के पार्ट है। इसके अलावा उसकी जो वीटो पावर है इट कैन स्टॉप एनी मूव्स दैट इट फाइंड्स इनोइंग और डैमेजिंग टू इट्स इंटरेस्ट और टू द इंटरेस्ट ऑफ इट्स फ्रेंड्स एंड अलाइज। तो जो पावर है US की और उसकी वीटो की विद इन द ऑर्गेनाइजेशन इंश्योर दैट वाशिंगटन हैज़ अ कंसिडरेबल डिग्री ऑफ से इन द चॉइस। Therefore, जो UN है is not a great balance to the US. So this was the part here, and that is it.